Hello students, in the previous video we discussed about the process of photosynthesis. Let us now look into the process in detail. Come, let us continue chapter 1, Nutrition in Plants. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight plus chlorophyll gives carbohydrate plus oxygen. During the process of photosynthesis, लीव्स की वो सेल्स जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करके सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को. सिंथेसाइज यानी कि प्रिपेयर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को. तो ये पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं और ये जो है इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन रिप्रेजेंट किया गया है इस तरीके से. During the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है और लीफ में जो स्टार्च पाया जाता है वो ये इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस ऑकर हुआ है. स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है. स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. आप लोगों ने रेड या फिर येलो इन कलर्स के लीव्स भी देखे होंगे, बट दैट डजंट मीन कि ये जो लीव्स है वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं करते हैं. आयोडीन टेस्ट करने से ये पता चलेगा कि ये जो लीव्स हैं इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है. The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. ऐसे लीव्स में जो रेड, ब्राउन या येलो कलर के होते हैं उनमें ये कलर के पिगमेंट ज़्यादा होते हैं, इसीलिए क्लोरोफिल का वो जो ग्रीन कलर है उसके ऊपर एक पैच बन जाता है, एक मास्क बन जाता है और हमें दिखता नहीं है कि वो ग्रीन कलर है, बट उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है और ऐसे लीव्स भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हैं. You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. अक्सर पॉन्ड्स में या फिर रिवर्स में ग्रीन कलर के स्लाइमी यानी कि चिपचिपे पैचेस दिख रहे होंगे, देखे होंगे आप लोगों ने पॉन्ड्स में सब. तो ये क्या है? ये एल्गे है और ये ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल होता है और ये भी अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Synthesis of plant food other than carbohydrates. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made out of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. But proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do plants obtain nitrogen? अभी हमने सीखा कि फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं ना. कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनते हैं. लेकिन इन्हीं चीज़ों से ही दूसरे कंपोनेंट्स भी बनते हैं जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स. लेकिन प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस. इसका मतलब क्या है? प्रोटीन में नाइट्रोजन भी कंटेन होता है. लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही तो यूज़ हुआ है. प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिला? सो कम लेट अस सी. Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. These are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents.
आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एयर में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्ट गैशियस फॉर्म में अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सॉइल में ही रिलीज़ कर देते हैं। तो जो प्लांट्स के रूट वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, तो उसके साथ साथ ये नाइट्रोजन गैस को जो बैक्टीरिया ने कन्वर्ट किया है, जो यूज़फुल फॉर्म में है, उनको भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है। आप लोगों ने फार्मर्स को भी फर्टिलाइजर्स ऐड करते हुए देखा होगा सॉइल में, जो काफ़ी रिच होते हैं नाइट्रोजन में। तो उसके थ्रू भी प्लांट्स को नाइट्रोजन के साथ साथ बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी मिल जाते हैं। लेट अस नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, other modes of nutrition. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. How do they survive and from where do they derive nutrition? Like humans and animals, such plants depend on food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, सो वो लोग फूड अपना खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो वो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं? दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स है, जैसे एनिमल्स है, सारे वो लोग कैसे डिपेंडेंट होते हैं बाकी प्लांट्स में। तो ये जो प्लांट्स है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो भी दूसरे प्लांट्स में जो खुद प्रोड्यूस करते हैं फूड, उन पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड न्यूट्रिशन के लिए, अपने रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो ये जो है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे, ये प्लांट्स के, इन प्लांट्स के, दे यूज़ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका न्यूट्रिशन का मोड कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिक होता है, यानी कि दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। नेक्स्ट आप लोग इस पिक्चर में देखिए, do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree? This plant is called Cuscuta या अमरबेल. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host. ये जो पिक्चर में हमने ट्री देखा है, उस ट्री पे एक क्रीपर है, जस्ट लाइक अ वायर, है ना, वायर की तरह उस पर लपेटा हुआ है, बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ हुई है ये प्लांट की। ये प्लांट को हम कस्कटा या फिर कस्क्यूटा बोलते हैं, इसे अमरबेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्लांट है इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल ना होने की वजह से ये खुद फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो है, ये ट्रीज़ पे ऐसे क्लाइंब करते हैं और उन पे डिपेंड होते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए। तो जो भी ट्री ये क्लाइंब करते हैं, उस ट्री को होस्ट कहते हैं, और ये जो है वो ट्री पे डिपेंड होता है अपने फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। अब ये जो होस्ट ट्री है, उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे कस्क्यूटा डिप्राइव करता है, यानी कि छीन लेता है या फिर पूरा हटा देता है, वो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो कस्कटा को क्या बोलेंगे? इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट। अब पैरासाइट का मतलब क्या है? सेम जो कस्क्यूटा करता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट पे, यानी कि कोई और प्लांट पे जाके उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी उसके वैल्यूबल्स है, वो ले लेता है, उसे पैरासाइट कहते हैं। तो कस्क्यूटा इज़ अ पैरासाइट। Have you seen or heard of plants that can eat animals? There are a few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or of some other color. आप लोगों ने कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना होगा शायद, जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उन्हें खा जाते हैं, यानी कि डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब ये हर एक प्लांट्स का बिहेवियर नहीं है, सारे प्लांट्स ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे करते हैं। तो ये प्लांट्स ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं या फिर कुछ और कलर के भी हो सकते हैं, बट ये लोग इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करते हैं, खा जाते हैं। लुक एट द पिक्चर इन फिगर। The picture-like or jug-like structure is the modified part of leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the picture. Inside the picture there are hair which are directed downwards. When an insect lands in the picture, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair.
The insect is digested by the digestive juices secreted in the picture and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. जो फिगर में आपने प्लांट देखा है उस प्लांट का नाम है पिक्चर प्लांट. उस प्लांट का नाम पिक्चर प्लांट इसीलिए है क्योंकि वो पिक्चर या फिर जग को रिसेंबल करता है, इसीलिए उसे पिक्चर प्लांट कहते हैं. उसके जो लीव्स है वो इस तरीके से है, वो मॉडिफाइड है पिक्चर के फॉर्म में, यानी कि एक छोटे से वास के फॉर्म में. और वो लीफ का जो टिप है वो कैसा हो जाता है, जस्ट लाइक अ कवर, वो उसको लिड जैसे हो जाता है जो उसको ओपन क्लोज कर सकता है उस पिक्चर के माउथ को. अब वो जो पिक्चर का इंटीरियर है उसके इनसाइड में अंदर हेयर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फिर हेयर है जो नीचे की डायरेक्शन में है. ठीक है, इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. तो जब भी कोई इंसेक्ट उसके माउथ के पास या फिर उस पिक्चर के अंदर एंटर होता है तो क्या होगा, वो लिड जो है वो खुद ही खुद क्लोज हो जाएगा और उसके बाद वो इंसेक्ट जो है वो हेयर में एंटेंगल हो जाएगा, मतलब उसका कुछ वो फंस जाएगा. ठीक है, वो हेयर में फंस जाएगा और वो इंसेक्ट फिर वो पिक्चर के अंदर ट्रैप हो जाएगा क्योंकि वो खुद उस पिक्चर के अंदर फंस भी जाएगा और फिर उसका लिड भी क्लोज हो जाएगा, तो बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं और वो उसके अंदर ट्रैप हो गया है. अब नेक्स्ट क्या होगा, डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट होंगे, यानी कि वो पिक्चर के अंदर जहाँ पे इंसेक्ट ट्रैप है वहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट होंगे और वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेंगे और उस इंसेक्ट में जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे अब्जॉर्ब कर लेगा वो पिक्चर प्लांट. इस तरीके से पिक्चर प्लांट जो है वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है, डाइजेस्ट करता है और अपनी न्यूट्रिशन की नीड को फुलफ़िल करता है. और क्योंकि वो पिक्चर प्लांट जो है वो इंसेक्ट को खाता है, इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है, इसीलिए उसे इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं. पिक्चर प्लांट के साथ साथ एक और ऐसा प्लांट है जो फ्लाइज़ को, ज़्यादातर फ्लाइज़ को ही वो ट्रैप करता है, तो उसे वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं. और ये प्लांट भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है क्योंकि ये दोनों प्लांट्स, पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये दोनों ही इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स हैं. Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? हाँ, ये पॉसिबल है क्योंकि भले ही पिक्चर प्लांट जो है वो ग्रीन कलर का है एंड दे डू फोटोसिंथेसिस, बट उसमें वो प्लांट जो सॉइल में ग्रो होता है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और इस वजह से वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उन्हें उन प्लांट्स को नहीं मिल पाते हैं. दैट इज़ वाई दे कैरी आउट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट सैफ्रोट्रॉप्स और उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे.